हेलो एवरीवन, वेलकम टू PYQs। तो आज के हम कैलकुलेटर यूजेस में हम देख रहे हैं मैट्रिक्स ऑपरेशन। तो इन दिस वीडियो विल सी हाउ टू स्टोर अ मैट्रिक्स, हाउ टू एंटर द मैट्रिक्स इन द कैलकुलेटर, and then how to find out the determinant of matrix. So first of all, matrix storage. We'll see matrix storage. Second, we'll see how to find out determinant of matrix. Determinant of matrix directly from calculator. And third is how to multiply matrix. Fourth is to find inverse of matrix. Using calculator. Find inverse of matrix using calculator. And fifth is to store value. Value of one matrix to another. Okay. So first of all, to do this, we'll take a matrix A. Suppose this matrix is 2, 6, 6 and 2, 8, 6, 2, 6, 8. So before I'll start how you can take matrix, you can go to shift. First of all, you'll go to mode, click on mode. Here you can see at 6 you have matrix. So click on 6. Now you can see there are three ways to access a matrix: matrix A, matrix B, and matrix C. So before I'll do these things, first of all I'll reset my calculator. So I'll go to setup here and I can reset calculator, shift, I'll do clear and then I'll press 3, I'll reset all, then equals to, so then AC. So that is all. I have reset my calculator. Now I'll go to shift and I'll not go to shift, I'll go to mode and then here we have matrix. तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स में आप मैट्रिक्स ए ले लो, मैट्रिक्स ए। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिफरेंट साइज ऑफ मैट्रिक्स दिए हुए हैं। तो सपोज आई एम टेकिंग 3x3 मैट्रिक्स, सो आई विल टेक select one. Now I'll enter the values of matrix, that is 2. After entering each value, I'll have to press equals to 2, 6. Now 6. Again I have to 2. I have to add 8. Then again 6. 2, 6 and 8. So that is how matrix is stored here. Now you put AC. So you got it, matrix is stored or not, you have to check, then press shift and here you can say at 4 here is matrix. So click on 4. You can see here 3 is represented by matrix A. So click 3 and here you can see on your screen you got matrix A. अब if you press equals to, you'll get the required matrix. तो आपको ये पता चल गया कि ये जो मैट्रिक्स है वो A में स्टोर हो चुका है। Now next thing is to find out the determinant of matrix. Next thing is to determinant of matrix. तो इसका determinant जो है, determinant of A जो है वो 8 है, हमने कैलकुलेट पहले किया है, इसमें भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो शिफ्ट आप पहले शिफ्ट दबाइए, फिर मैट्रिक्स पे जाइए और फिर यहाँ पे आप देख रहे होंगे 7, जहाँ पे आपको डिटर्मिनेंट दिखेगा तो आप 7 पे क्लिक करें, फिर से आप शिफ्ट दबाएं और 4 पे जाएं और यहाँ से आप मैट्रिक्स थर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आप ब्रैकेट को क्लोज करें और इक्वल्स टू लें, थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद आपको वैल्यू डिटर्मिनेंट की 8 आ जाएगी। तो हमने डिटरमिनेंट की वैल्यू भी देख ली है। अब उसके बाद हम चाहें तो इनवर्स भी देख सकते हैं। तो पहले AC से हम क्लियर करते हैं और फिर शिफ्ट दबाते हैं, मैट्रिक्स पे जाते हैं और मैट्रिक्स A लेना है तो 3 हम ले लेते हैं मैट्रिक्स A और इसको हम, आप यहाँ देखो एक्स इनवर्स का साइन है तो डायरेक्टली एक्स इनवर्स यूज कर सकते हैं और इक्वल्स टू दबाएं तो हमारे पास थोड़ा टाइम के बाद आपको ये इनवर्स की वैल्यू आ जाती है। तो A इनवर्स की वैल्यू अगर आपको लिखनी है तो A इनवर्स की वैल्यू आप डायरेक्टली लिख सकते हो। तो देखो आप यहाँ पे आपको 3.5 दिया है और यहाँ पे फ्रैक्शन दैट इज 7/2 और फिर आप अगर जैसे शिफ्ट करो तो आपको ये -3/2 ऐसे आपको चीजें मिल जाएंगी। सो यू कैन सी 3/2 दैट इज -3/2, दैट इज अगेन -3/2 एंड दैट इज अगेन -हाफ। तो आप देख सकते हो ये हाफ है और ये 0 है और ये -हाफ है और ये 0 है और ये हाफ है।
तो आपके पास ये दोनों चीजें आ गई हैं। अब जैसे कि आप देख रहे हो, आप जो भी करंट ऑपरेशन परफॉर्म किया है उससे रिलेटेड चीजें मैट्रिक्स आंसर में सेव होती है। नाउ यू कैन click on 6 and you can see matrix answer. You'll get that inverse what we have calculated recently. तो अगर आपको फिर से चेक करना है तो आपको अब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करके हम दिखाते हैं। We have done with inverse. So for example, I have to multiply this matrix answer with matrix A. तो आपको पता है A इनवर्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं मैट्रिक्स, सॉरी फिर से हम देख लेते हैं, मैट्रिक्स आंसर दैट इज 6 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फिर से आप शिफ्ट दबाइए, आप जब शिफ्ट दबाते हैं यहाँ एस लिखा हुआ होता है, तभी आप फिर मैट्रिक्स दबाइए और फिर 3 क्लिक करिए। उसके बाद इक्वल्स टू पुट करने पे आप थोड़ा मल्टीप्लिकेशन में प्रोसेसिंग लगेगा, फिर आप देख सकते हैं कि यूनिटरी मैट्रिक्स आ चुका है। a इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू आई। आप यहाँ 3 क्रॉस 3 की यूनिटरी मैट्रिक्स देख सकते हो, सॉरी यूनिट मैट्रिक्स देख सकते हो। उसके बाद अब आपने मल्टीप्लिकेशन देख लिया, आपको हम फिर से स्क्वायर करके दिखाते हैं। जैसे a, आप फिर से मैट्रिक्स पे जाओ, आप यहाँ पे देखो, आपको जो भी दिख रहा होगा यहाँ पे 2 जो है वो डेटा है। तो आप मैट्रिक्स कोई भी डेटा चेंज करना चाहते हो तो वहां पे जा सकते हो। तो अभी हम कर रहे हैं स्क्वायर, सो मैट्रिक्स लेंगे और यहाँ पे स्क्वायर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ए स्क्वायर नजर आएगा। थोड़ा कैलकुलेशन में टाइम लगता है, उसके बाद हमें ए स्क्वायर नजर आता है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू हो गई है, ए स्क्वायर की वैल्यू है 28, 96, 96, 32, 112, 108 and again 32 and 108, 112। तो आप ये सब चीजें कहाँ यूज करते हो? आप ये यूज करते हो मैक्सिमम लीनियर अलजेब्रा के टॉपिक्स में, आप इसको इफिशिएंटली यूज कर सकते हो। तो आपको जैसे पता है कि मैट्रिक्स आंसर में अभी हमारे पास, जैसे कि आप शिफ्ट दबाइए और मैट्रिक्स दबाइए, तो रिसेंटली हमने ए स्क्वायर कैलकुलेट किया, तो आप अगर 6 फिर से दबाते हैं तो यू विल गेट मैट्रिक्स आंसर दैट इज ए स्क्वायर। इस टाइम मैट्रिक्स आंसर में ये है। अब आप इस मैट्रिक्स आंसर को अगर आप स्टोर करना चाहते हो बी में, तो आप यहाँ से शिफ्ट दबाइए और RCL दबा सकते हैं। तो अब इस टाइम पे, सॉरी फिर से हम जाते हैं, अगर आपको इसको स्टोर करना है कहीं पे तो आप पहले मैट्रिक्स आंसर पे जाइए, 6 दबाइए और इक्वल्स टू दबाइए। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे मैट्रिक्स आपको मिल गया है। अब आपको शिफ्ट क्लिक करना है और फिर RCL क्लिक करना है, तो आपको यहाँ दिखेगा STO, मतलब इस मैट्रिक्स को कहाँ स्टोर करना चाहते हैं। अब आप ABC में स्टोर करना चाहते हैं, तो सपोज हम इसको B में स्टोर करना चाहते हैं, तो B क्लिक किया तो ये अब हमारे पास B में वैल्यू स्टोर हो गई है। तो अगर आपको चेक करना है कि B में स्टोर हुई है कि नहीं, फिर से आप शिफ्ट दबाइए एंड अगेन यू विल गो टू मैट्रिक्स। नाउ यू विल प्रेस 4, so again equals to, you can see this A square is stored into B. So you got this. So we have done all these things. Now if you want to calculate A cube, so you know A has value and B you have stored A square in B. So for having A cube, you can multiply A and B. So again, how to multiply this? Go to shift, take matrix operation, and here you can take 3, then multiply it with matrix operation, take 4B, and then you'll get it A cube. So A cube आपको मिल गया। अब आप इस A cube को अगर आप स्टोर करना चाहते हो तो STA, और आप यहाँ RCL क्लिक करो स्टोर, और यहाँ पे डायरेक्टली आप HYP के ऊपर C लिखा हुआ, तो C को क्लिक करो तो आपको पता चलेगा कि C में A क्यूब की वैल्यू स्टोर हो चुकी है। अगर आप चेक करना चाहते हो तो फिर से आप शिफ्ट दबाएं और फिर आप मैट्रिक्स पे जाएं और यहाँ पे 5 क्लिक करें और इक्वल्स टू दबाएं, तो यहाँ पे आपने A क्यूब की वैल्यू जो है वो C में स्टोर कर दी है। तो A जो है मैट्रिक्स है B में। अब हमारे पास 3 मैट्रिक्स हो गए हैं, A स्क्वायर A क्यूब हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो इस तरीके से आप इस मैट्रिक्स ऑपरेशन को डिफरेंटली यूज कर सकते हो। अगर आपको फिर से ये मैट्रिक्स सेटअप में है, अगर आपको चेंज करना है सेटअप, तो आप यहाँ सेटअप पे क्लिक करें और मोड पे क्लिक करें और 1 दबाएं, तो इस तरह आप देख सकते हो कि फाइनली मैथ्स नॉर्मल सेटअप में हम आ चुके हैं। सो दैट इज ऑल।